Pranam everyone. So today in this auspicious day, we are also conducting a workshop on good touch and bad touch. So Dr. Anuradha ma'am is here to take this workshop. So I request ma'am to please. सेट कर सकते हैं इसको हम सेट हो जाएगा तो इजी है। So, जान तो गए हम लोग एक दूसरे को? बताएंगे कोई? मेरा नाम बताएगा? Oh my God, everyone knows me. You're lots of fun. Okay. Okay, let's say 1, 2, 3. Very nice. शुरू करें? आप में से बहुत सारे लोगों ने स्किट देखा है अभी, ऑलमोस्ट सभी ने देखा है ना? So we are going to take a session on good touch and bad touch. कोई बताएगा? आप में से कोई भी कि what is a good touch? Yes, students, what is a good touch? Yes. Good touch feel us comfortable. Definitely, very correct answer. Good touch feel us very comfortable. Very good, Raj. What's your name? Okay. Then what's the bad touch? Bad touch feel us uncomfortable. Okay, that's also very nice answer. Bad touch feel us very uncomfortable. Anyone else? Other than comfortable, what we feel during good touch and what we feel during bad touch? What we feel during good touch? Yes. You? Say. Good feeling. Good feeling, exactly. What's your name? Vani. Very correct. Good touch is a good feeling and bad touch is a bad feeling. Okay. So now we start. This slide represents good touch is concerned and bad touch is concerned both boys and girls. Okay? It's not limited to girls only, or we can't say कि boys won't suffer from bad touch. It is concerned for both the students or both the children, boys and girls. This is the good feeling. Okay? Yes. Good touch is a good feeling and bad touch is a bad feeling, which makes you sad, uncomfortable, unhappy. This is the bad touch. Okay, now we explain what's the good touch. First one is good touch. First one is good touch. Okay. क्या है उसमें? First one में क्या है? सबकी मम्मी पापा प्यार करते हैं? करते हैं, प्यार से हमारे सर पे हाथ फेरते हैं, हमको गोदी में बिठाते हैं, खाना खिलाते हैं, सारी चीजें करते हैं हमारे लिए, है ना? That's a good touch. And this one? छोटे बच्चे जब मम्मा आपको नहलाती है, वो कौन सा टच है? Good touch. You feel very comfortable, very good. मम्मा आपको धीरे धीरे साबुन लगा के धीरे धीरे प्यार से नहलाती है, वो सबके लिए एक अच्छी फीलिंग होती है. And when we are with our family, when we are with our friends, when we are with our close relatives, what we feel? We feel very comfortable, very secure, and that's also a happy feeling. And guys, look, हमेशा क्या है गुड टच पर ग्रीन टिक. जब रॉन्ग आंसर होता है तो क्या होता है? So that means जब भी गुड टच आएगा क्या आएगा? ग्रीन means happiness. Good touch. Is it visible to everyone? Yes, ma'am. Okay. This is blessings. Good touch. Good touch, definitely. When someone bless you for your achievements or for your better performance in a games or an
academic achievements, when blessings are given to you, that is a good touch. And this is also a good touch. So again, green sign is there. दादा दादी प्यार करते हैं? Yes. वो क्या है? Good touch. अच्छा, जब हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, बैड है क्योंकि डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, that's why bad? No. हमारे मम्मी पापा हमारे साथ हैं, डॉक्टर हमें टच कर रहा है, यहाँ पे हमको स्टेथोस्कोप लगा रहा है, हमको यहाँ पे लगा रहा है, बैक में लगा रहा है, या हमारी को इंजेक्शन लगा रहा है, दैट इज नॉट अ बैड टच, बिकॉज वो हमारे पेरेंट्स के सामने, छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ही जाते हैं ना डॉक्टर के पास में, तो वो चीज भी बैड टच नहीं है अगर वो एग्जामिन हमको हमारे पेरेंट्स के सामने कर रहा है और हमारे को ठीक होने के लिए वो अगर हमको इंजेक्शन लगा रहा है, तो दैट इज नॉट अ बैड टच. Again, all these are the happy feelings. Yes, ma'am. So this is a good touch. अब बताइए हम लोग के कौन कौन से इम्पोर्टेंट सेंसेस हम लोगों के कौन कौन से हैं? टच. एंड टच इज वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि टच से हमें कोई भी चीज के लिए फीलिंग आती है कि गुड है या बैड है, ठीक है. और सिर्फ गुड और बैड नहीं, हमको कुछ चीजें बहुत इरिटेटिंग लगती है. बर्निंग कैसा लगता है हमको? इरिटेटिंग लगता है, नुकसान पहुंचाता है. कोई हमको पिंच करे कैसा लगता है हमको? खराब लगता है ना. सो अब हम इन सेंसेस से जानेंगे कि हाउ दीज सेंसेस आर इन्वॉल्व इन गुड टच एंड बैड टच. Shaktiman and Superman? As you know? Okay. So, you have to become a Superman, you have to become a Shaktiman if someone is touching you in a bad manner. Okay? So, you have to use your powers like Superman and Shaktiman. All these are the bad touch. Yes. कैसे? यदि कोई आपको लिप्स पर टच करे और चेस्ट पर, देन प्राइवेट पार्ट्स पर, एंड देन बम्स पर, बटक्स पर, है ना, यहाँ पर कहीं भी यदि आपको कोई टच करे तो ऑल दीज टाइप्स ऑफ टच आर बैड टच. अभी हमने नीचे देखा ना, जब भैया ने, हार्दिक भैया ने आपके उसकी लिप्स पे टच किया तो क्या हुआ? एक रेड कलर का लाइट ब्लिंक हुआ. दैट मीन दैट इज अ साइन ऑफ डेंजर. All four alarming situations. Okay? यदि कोई आपको जबरदस्ती इन 4 जगह पे टच कर रहा है तो that is not a good touch. That is a bad touch. Okay? Forcefully यदि आपको कोई ये 4 जगह पे टच कर रहा है और उससे आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर वो बैड टच है. कहाँ हो सकता है? प्लेसेस. हाँ बिल्कुल, वानी इज वेरी इंटेलिजेंट. मैम, जब हम अकेले होते हैं. गुड. जब हम अकेले होते हैं. पार्क में, गार्डन में. ओके. मैम, पार्क में, अनजान जगह पर, और जब हम अकेले हो. So all of you are very intelligent. मतलब the words they are using अनजान जगह पर so cute. मतलब छोटे छोटे बच्चे हैं, they know कि अनजान जगह कौन सी होती है? Yes, जहाँ पे हम कभी नहीं गए होते या फिर हमें अकेले जहाँ पर जाने के लिए मना किया जाता है. जहाँ कोई नहीं आता. Yes, जहाँ कोई नहीं आता वो भी सुनसान जगह इज ऑल्सो अनजान जगह. वेरी गुड, बहुत अच्छा. तो ऐसी कोई भी जगह, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस में, ट्रेन में, जहाँ पे भीड़ होता है, जहाँ पे कंजेस्टेड होता है,
हाथ लगा के आपको यहाँ वहाँ टच करना शुरू कर दिया, सो दैट इज अ बैड टच। जब कभी भी आप भीड़ वाली जगह पर जाते हैं तो आपको वहां पर भी ध्यान रखना है कि कोई भी हमें बैड टच नहीं करे। उसके अलावा पब्लिक टॉयलेट्स, कभी कभी हम ट्रैवल करते तो हम क्या यूज करते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हैं, हम मार्केट जाते हैं, सिनेमा हॉल जाते हैं, तो कभी भी आपको पब्लिक टॉयलेट्स में अकेले नहीं जाना है हमेशा, क्योंकि हम छोटे हैं, हमको अपने पेरेंट्स के साथ में ही जाना है। अकेले पब्लिक टॉयलेट्स में नहीं जाइए, वहां पर भी इस टाइप का टच करने वाले लोग हो सकते हैं। एक और बात, क्या वर्ड लिखा है, अब कहाँ देखो रेड ये लगा हुआ है, कहाँ पर, जिद ना करे, है ना। अकेले जाने की, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मम्मा मैं बड़ा हो गया हूँ मुझे अकेले जाने दो, या मम्मा मैं बड़ी हो गई हूँ मुझे अकेले जाने दो। सो अकेले जाने की जिद वैसी जगह पे नहीं करनी है जहां पर आपके पेरेंट्स ने आपको जाने से मना किया है, बिकॉज देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ बैड टच। फिर अगर कोई आपके सामने अपने कपड़े उतारकर, अगर कोई, अभी आपने स्किट में क्या देखा था, क्या देखा था कि वो अंकल कहते हैं उसको कि आप जो है यहीं पे कपड़े चेंज कर लो, देखा ना। अंकल आते घर पे, फिर वो ड्रेस लेकर आते हैं, तो वो बोलती है कि चलो, बेबी बोलती है कि मैं चेंज करके आती हूँ, तो अंकल ने क्या बोला कि आप यहीं पर चेंज कर लो। नो, आपको अपने कपड़े अपनी प्राइवेसी में ही चेंज करने हैं। दूसरी बात ये कि यदि कोई और भी आपके सामने अनड्रेस होता है और यदि अपने प्राइवेट पार्ट्स आपको दिखाता है, सो दैट इज ऑल्सो अ बैड टच, क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा था, देयर आर 4 सेंसेस जिनसे कि हम बैड टच को फील करते हैं। तो एक तो ये कि टच करे कोई, दूसरा क्या पढ़ा था हमने कि हम देखकर भी बैड टच को फील कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आपको टच किया। एक और हमने देखा था बिस्किट में, क्या मोबाइल पे क्या दिखाया था, बैड कंटेंट दिखाया था ना, छोटे बच्चे को डोरेमोन बोल के और दूसरा कुछ दिखाया। तो ऐसा कोई भी कंटेंट जो आपको देखना अच्छा नहीं लगे या जिसमें कोई भी पर्सन अपने आप को अनड्रेस करके अपने पार्ट्स को शो कर रहा है, वो आपको नहीं देखना है, ठीक है। आपको क्या क्या देखना है, सिर्फ डोरेमोन देखना है, सुपरमैन देखना है, शक्तिमान देखना है, रामायण देखना है। आजकल तो बहुत सारे कार्टून्स आते हैं, क्या क्या आते हैं, वो भैया शिनचैन और छोटा भीम देखना है, सारी चीजें। अब एक बार बताइए, ओके, आप एक बार बताइए, जब हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं देखने के लिए, तो हमको अगर कोई जबरदस्ती कुछ दिखाए तो हमको क्या करना है, नो, हमको वेरी गुड, हमको उसको नहीं देखना है। ये वही बात है जो अभी आपको मैंने बताया है। ओके, नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनजान जगह पे नहीं जाना है और अनजान आदमी। अनजान वर्ड आपका बहुत, मुझे आपका एक्सप्लेनेशन बहुत पसंद आया। तो अनजान आदमी जिसको हम नहीं जानते हैं, ठीक है, वो यदि हमारे घर आता है, इसके अलावा कोई भी, ये क्या है, ये देखो, ये देखो, पार्सल्स। हम लोग क्या मंगाते हैं घर पे, क्या चीजें, पिज्जा मंगाया, बर्गर मंगाया, टॉयज मंगाए, कुछ भी मंगाए, फोटोज भी मंगाते, सब चीजें मंगाते, बहुत सारी चीजें मंगाते हैं। तो कोई भी पर्सन, कोई भी ऐसा आदमी जो
हैं तो आप कभी भी ऐसी गलती नहीं करेंगे। दूसरी बात ये, कई बार घर में डॉगी होता है ना, साइड में बंधा होता है, वो सीक्रेट जगह आप ही को पता होती है कि कहाँ पर बंधा हुआ है। वो किसी अनजान आदमी को तो नहीं पता होता कि आपके घर में कहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगाए, कहाँ पे आपके घर में डॉगी है। तो हमें डिलीवरी मैन को या किसी भी अनजान आदमी को कभी ये नहीं बताना है कि अंकल आप उधर से आ जाओ, उधर तो डॉगी बंधा रहता है। हमें ये बात उनको नहीं बोलना है। या अंकल आपका तो फोटो मेरे मम्मी डैडी को ये वाले सीसीटीवी में दिख रहा है। वो किस लिए है? वो आपकी सिक्योरिटी के लिए है। आपको उसे सबके साथ शेयर नहीं करना है। ठीक वैसे ही जैसे हम घर को लॉक करते हैं तो हम क्या चाबी सबको बता देते हैं? नहीं ना, हम लोग क्या करते हैं? चाबी को छुपा के रखते हैं। वैसे ही आपको किसी भी अनजान आदमी को कभी ये नहीं बताना है कि आपके घर में कहाँ पे डॉगी है, कहाँ पे सीसीटीवी है, मम्मा पापा कहाँ गए हुए हैं, आपके घर में अभी कौन कौन है, या इस समय आप घर में अकेले होते हैं। कभी कभी हम पार्सल वाले से बात करते हैं, अरे अंकल अगली बार में आप यही टाइम आना, मैं कुछ ऑर्डर करूँ तो, इस समय मैं घर में अकेली होती हूँ। ऐसा किसी को भी हमें नहीं बोलना है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे अनजान जगह नहीं जाना है, वैसे ही अनजान आदमी को अपने घर के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में और अपने बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। ये तो आपने बहुत अच्छे से मुझे बताया है। गुड टच आपको हैप्पीनेस देता है, आपको सिक्योरिटी फील कराता है और आपको बहुत अच्छा लगता है। और बैड टच आपको हैरान करता है, परेशान करता है, गुस्सा आता है, बुरा लगता है, आप उदास हो जाते हैं और कभी कभी आपको लगता है आप खुद से ही गिल्ट फील करते हैं या शाय फील करते हैं और आपको गुस्सा आने लगता है। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, सबको पता है। यदि कोई आपको जबरदस्ती बैड टच करे तो क्या करना है? क्या शाउट करना है जोर से? बिल्कुल, इतना स्ट्रॉन्ग और इतना लाउड अगर आप शाउट करेंगे तो कोई जो आपको बैड टच करेगा वो खुद से ही डर जाएगा, है ना? वो आपको बैड टच नहीं करेगा। चिल्लाने के बाद क्या करना है? शाउट करने के बाद वहां से दौड़ के चले जाना है। वहां से हमको क्या करना है? भाग जाना है। यस, एग्जैक्टली, रन अवे। वहां से बिल्कुल दूर बाहर भाग जाओ। फिर उसके बाद में लेकिन क्या ध्यान रखना है? कोई चीज से टकराकर गिरना नहीं है ना? वैसे मुझे लगता है सब गेम्स में अव्वल आते होंगे, है ना? तो सबको दौड़ने का अच्छा प्रैक्टिस होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी बच्चा ये सोचेगा कि मुझे कहीं लग जाएगी। और डरना नहीं है। किसको बताना है? या पापा को, सिस्टर को, someone you trust very well, ब्रदर को बता सकते हैं। हाँ, गुड। और ये सब लोग कौन है जिनको हम ट्रस्ट करते हैं? सो एनी पर्सन टू whom you trust very much, जिसको भी आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, आप ऐसे किसी भी आदमी को ये बात बता सकते हैं। घर में भी और स्कूल में भी। यहाँ तो आप कितना घंटा रहते हैं? सुबह से लेके शाम 5 बजे तक। तो आप अपने टीचर को भी ये बात बता सकते हैं। बैड टच कहीं पे भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि कोई पार्सल वाला आएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करेंगे, आप कहीं पार्क में जाएंगे, कहीं पर भी, इवन स्कूल में भी कोई आपको बड़ा बच्चा भी बैड टच कर सकता है। कभी आपको कोई स्कूल का भी अगर ऐसा हो, आपको ऐसा लगे तो टेल योर टीचर ऑल्सो। सबकी एक फेवरेट टीचर होती है ना? यस मैम। तो बस उन्हीं को बताना है आपको। फिर और कब तक बताना है? कभी कभी ये होता है कि ये बहुत खास बातें आपने नो कर दिया, आप वहां से भाग गए, आपने बताने की कोशिश भी की, लेकिन पापा मोबाइल पे बात कर रहे हैं। अच्छा सुनता हूँ, अभी सुनता हूँ, अच्छा अभी रुको, अच्छा ऐसा करो, बाहर जाओ, अभी मम्मी को बता दो।
फिर बाहर गए मम्मी भी नहीं मिली, फिर बाहर गए अच्छा किसको बताएं, नहीं मिला। कब तक बताना है? जब तक आपकी बात कोई सुनकर समझकर और उस बात पर एक्शन ना ले ले। आया समझ में? ऐसा नहीं कि पापा बिजी है, मम्मी बिजी है, दादी बिजी है, दादा बिजी है तो हम उनको नहीं बता रहे, या टीचर क्लास ले रही है तो हम उनको नहीं बता रहे। आपको तब तक बताना ही है वो बात जब तक आपकी बात पूरी वो सुन ना ले और आपकी बात को समझ के उस पर्सन को डांटे नहीं, समझाए नहीं, तब तक आपको वो बात उनको बताते रहना है। ये देखिए आ गया ना पॉइंट कि कब तक बताना है? जबरदस्ती सुनो मेरी बात, क्योंकि बैड टच बहुत इंपॉर्टेंट है ना? इफ यू डोंट वांट टू फील दैट बैड टच अगेन, सो यू हैव टू टेल। बॉयज के साथ भी हो सकता है, गर्ल्स के साथ भी हो सकता है, कोई रिलेटिव भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई सीनियर भी हो सकता है। इनमें से कोई भी आपको बैड टच कर सकता है। एंड दिस इज फॉर योर टीचर्स। आप तो रिपीट करते रहते हैं ना, कितना अच्छा आप लोगों ने वो स्किट बनाया, कितना अच्छा आप लोगों ने एक पूरा पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन कर रखा है कि यदि कोई इन 4 पार्ट्स पे टच करेगा तो अलार्मिंग सिचुएशन है। सो रिपीट दैट, जिससे कि आपके साथ कभी भी बैड टच नहीं हो। एंड लास्ट, दिस इज अ चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। कौन बताएगा मुझे? क्या बता रहे हैं आयशा? यस बेटा, ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर डायल करेंगे तो डेफिनेटली कोई ना कोई उठाएगा। ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है। देखो वहाँ पे लिखा भी हुआ है डे एंड नाइट। हमेशा काम करेगा, लेकिन आपको इस पे मजाक करने के लिए कि चलो मैं नंबर चेक करता हूँ, है ना, ऐसे करके फेक कंप्लेन नहीं करनी है। क्योंकि सबको पता है कि यदि हम बार बार झूठ बोलते हैं, सबने कहानी सुनी होगी ना कि शेर आया एक बच्चा और फिर शेर आ जाता था। हाँ, तो हमको झूठ नहीं बोलना है। कभी अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फिर आपको इस नंबर पे, आप हेल्पलाइन नंबर है, अपनी बात बता सकते हैं। ठीक है? अब लास्ट में, अच्छा इससे क्या पता चला आपको कि सबसे सेफ जगह हमारे लिए कौन सी है? होम। सबके लिए सबसे सेफ जगह होम है। तो एक छोटी सी पोयम, आई डोंट नो आप लोगों ने वैसे सुनी है या नहीं सुनी है, बट अगर सुनी हो तो जब मैं सुना दूं उसके बाद बताना कि हमने सुनी थी। ठीक है? एक चिड़िया के बच्चे 4, एक चिड़िया के बच्चे 4 घर से निकले पंख पसार। ठीक है? छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे घर से निकले पंख पसार। ऐसे करते हैं ना आप लोग, सीखते हैं ऐसे। फिर पूरब से पश्चिम को आए, उत्तर से दक्षिण को आए, 4 दिशा में घूम लिए। आया समझ में? 4 डायरेक्शंस होती हैं, कौन कौन सी? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। सो एक चिड़िया के बच्चे 4 घर से निकले पंख पसार, पूरब से पश्चिम को आए, उत्तर से दक्षिण को आए। धूमधाम जब घर को आए, मम्मी को ये बात बताए। क्या बात बताए? देख लिया हमने जग सारा, सबसे सुंदर सबसे प्यारा घर है हमारा। है ना? आप सबके लिए ये एकदम ठीक बैठती है, इसीलिए मुझे याद आ गई कि सब बच्चों को अपना घर पसंद है, बट घर के बाहर हमें निकलना पड़ता है, हमें जाना पड़ता है। हमारे लिए सबसे सेफ जगह वही है, लेकिन फिर भी तो अगर आप बाहर जाते हैं तो हमेशा एक वाइजली इंटेलिजेंट बच्चे की तरह पूरा सोच समझ के आपको दूसरों के साथ अपने कहना चाहिए ना कि अपने आपको दूसरों के साथ कितना इंटरेक्ट करना है और उनको छूने देना है या नहीं, ये आप पर डिपेंड करता है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ बात करके, और ऐसे मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे ताकि आप मेरा नाम नहीं भूलेंगे और गुड टच एंड बैड टच भी नहीं भूलेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।